اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر محمد عقیل شہزاد، اور آج ہم اپنے اس ویڈیو میں برج سرطان، کینسر، کرک راشی کو 2022 کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ 2022 برج سرطان والوں کے لیے کیسا گزر سکتا ہے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ اول اور آخر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہونا وہی ہے جو میرے مالک کو منظور ہوگا. یہ ایک اسٹرالوجی کا علم ہے. شاہگان کی پوزیشن دیکھ کے جو پریڈکشنز کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اسٹرالوجی از اے گائیڈنس، اسٹرالوجی از اے سائنس، اور سیارگان ہماری زندگی میں کیا اثر رسوخ رکھتے ہیں، کیا فائدہ کیا نقصان دیتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو برج سرطان 21 جون سے 21 جولائی جن کا بھی یہ برتھ ہوگی، ان کا شمسی برج سرطان، کینسر، کرک راشی ہوگا. اور یہ ان کا شمسی برج ہے. اسٹرولوجر حضرات عام طور پر ان بتانا مناسب نہیں سمجھتے، بتاتے ہی نہیں کہ آپ اپنا قمری چارٹ، قمری زائچہ، مون چارٹ اور برتھ چارٹ، تارا لگن، پیدائش زائچہ لازمی دیکھیں. پیدائش زائچہ عام طور پر برتھ کے ٹائم کے حساب سے نکالا جاتا ہے. جس ٹائم برتھ ہوتی ہے اس ٹائم زائچہ نکالا جاتا ہے، کون سا برتھ چارٹ آپ کا ہے، کون سا پیدائش زائچہ ہے، اور اس وقت جو سیارگن کی پوزیشن تھی آپ کے برتھ کے وقت سیاروں کی آپ کے زائچے میں، وہ آپ کی تمام زندگی کو اثر رکھتی ہے. موجودہ ایام میں اگر سیارگان جتنے مرضی اچھے پڑھے ہوں، مگر اگر برتھ چارٹ میں زائچے میں سیارگان ستارے اچھے نہ پڑھے ہوں تو آل اوور لائف وہ ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں، پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے برتھ چارٹ میں پیدائش زائچے میں سیارگان اچھی پوزیشن میں موجود ہے اور موجودہ ایام میں ناقص بھی اگر سیارہ کوئی پڑا ہو، اچھا پھل نہ دے رہا ہو، تو پیدائش زائچے میں جو سیارہ اچھا پڑا ہوگا وہ آل اوور لائف آپ کو اس کا اچھا ہی رزلٹ دے گا. زندگی کے تمام پہلوؤں کو ان 12 گھروں سے دیکھا جاتا ہے. ہر گھر اپنی اپنی ایک الگ منصوبات کا مالک ہوتا ہے. زائچے میں 12 گھر ہوتے ہیں. تو آل اوور اگر دیکھا جائے برج سرطان والوں کے یہ سال 2022 ایک ملا جلا سال ثابت ہو سکتا ہے. کبھی خوشی کبھی غم، کچھ کھٹی یادیں کچھ میٹھی یادیں، اس طرح کی بیس پر 2022 برج سرطان والے اپنا گزار سکتے ہیں. مگر آخر میں میں ایک بہت اچھی ان کو ایک ایڈوائس کروں گا اور ایک ٹپ بتاؤں گا جو برج سرطان والوں کے لیے ہوگی. تو برج سرطان دیکھا جائے بیسیکلی ایک پانی برج ہے، اور پانی برج کی دوستی پانی بروج سے ہی ہوتی ہے یا مٹی بروج سے ہوتی ہے. ان کی دوستی آتشی اور ہوائی بروج سے بالکل نہیں ہوتی. ان کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج ان کا اپنے ہی بروج سے ملے گا، پانی سے یا مٹی بروج سے. آتشی اور ہوائی بروج سے ان کا مزاج بالکل نہیں مل سکتا. اور برج سرطان کے دوست بروج ہیں برج سملا، برج عقرب، برج ہود، ویرگو، اسکارپیو اور پائسیز. اور ان کے اینیمی بروج جو ہوتے ہیں، دشمن بروج جو ہوتے ہیں، وہ سیگیٹیریس، برج کوس اور دلو اکویریس ہیں. اس کے بعد برج پہلے گھر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. برج سرطان، لگن کا مالک سیارہ قمر. قمر، چندرما، مون، یہ ہمارے ایموشن سے جڑا ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں بھی ہم ایموشنز رکھیں گے اس کا تعلق قمر سیارے سے ہوگا. قمر سیارے کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ہم ہمیشہ دل کی سنتے ہیں، اس کا تعلق قمر سیارے سے ہوتا ہے. تو کچھ برج سرطان والوں میں یہ خصلت بھی پائی جاتی ہے. ایسے لوگ بہت ہی سافٹ، کائنڈنس ہوتے ہیں، موڈی قسم کے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دل کے خیالات جو بھی ہم سوچتے ہیں ان تمام کا تعلق قمر سیارے سے ہوتا ہے، چندرما، مون سے ہوتا ہے. جن چیزوں سے ہم جذباتی طور پر کنیکٹ ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی قمر سیارے سے ہوتا ہے. قمر سیارے کا تعلق والدہ سے بھی ہوتا ہے. قمر سیارے کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے بھی ہوتا ہے، ہوٹلنگ، اس کے علاوہ سی فوڈ، ریئل اسٹیٹ، اور اس کے علاوہ دوسروں کی کیئر کرنے والے، ان تمام کا تعلق قمر سیارے سے منسوب ہوتا ہے. ہر سیارہ، جتنے بھی 7 سیارگان ہیں، ہر سیارے کا 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو قمر سیارہ جو سا ہے ایک بہت ہی مانوس قسم کا سیارہ مانا جاتا ہے. آبی سفر سے فائدہ ہوتا ہے، پبلسٹی کرواتا ہے، انسان کو شہرت دلواتا ہے، آہستہ آہستہ مایا اشیاء سے فائدہ دلواتا ہے. اس کے علاوہ تجارت سے فائدہ دلواتا ہے، رئیس اور امیر لوگوں سے ملاقاتیں، تعلقات اور مالی فائدہ دلواتا ہے، اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور اسی طرح اگر برتھ چارٹ میں قمر سیارہ، چندرما، مون آپ کے ناقص پڑا ہو تو ایسے لوگ زیادہ تر خیالی پلاؤ پکانے والے ہوتے ہیں، بہت دور دور کی سوچتے ہیں، فضول خرچ، لالچی، حاسد، بے وفا، فکر مند اور غیر مطمئن ہوتے ہیں. چوروں سے تعلقات اور ناجائز طریقے سے دولت کے ذرائع بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ سیارہ قمر کے 2 طرح کے ایک فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. یہ آپ کے برتھ چارٹ سے، پیدائش زائچے سے پتہ چلے گا کہ قمر سیارہ آپ کی زندگی میں کس طرح کے اثرات مرتب کرے گا. زائچے کا پہلا گھر آپ کی شخصیت سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے کاموں کا ہونا یا نہ ہونا.
नफ़ा नुकसान, आपकी लुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आप बुजुर्गी, इज़्ज़त व शरफ, मर्तबा, मकाम, बुलंदी, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक, आपका बिहेव, आपकी नेचर, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ज़ायचे में पहले घर से है। और पहले घर का मालिक सियारा, सियारा कमर है। कमर सियारा एक तेज तरीन सियारा माना जाता है, जो कि एक घर में, ज़ायचे के एक घर में 56 घंटे रहता है, 2.5 दिन, यानी कि एक माह में ये 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। तो कमर सियारा अगर देखा जाए तो ज़ायचे में 6, 8वें और 12वें घर में नाकस फल देगा, यानी कि बुर्ज कोस, बुर्ज तलु और बुर्ज जोज़ा में जब भी इन 3 घरों में आएगा, शख्सियत में पहले घर की मनसूबात के हवाले से नुकसान हो सकता है, आप नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, काम इंतवाई का शिकार हो सकते हैं, होते होते काम रुक सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि इन बुर्जों में अगर कमर सियारा जब भी हो तो कुछ नया काम स्टार्ट ना करें। बाकी ऑल ओवर बाकी इन 3 बुर्जों के अलावा बाकी 9 बुर्जों में कमर सियारा जब भी मौजूद होगा, आपकी शख्सियत में परवान चढ़ेगा, आप एक ऊंची परवान उड़ सकते हैं, आपकी शख्सियत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि लगन पहले घर का जो सेंट्रल मालिक है वो सियारा कमर है और पहले घर का ताल्लुक आपकी शख्सियत से रिलेटेड है। इसके बाद ज़ायचे में दूसरा घर आपकी दौलत से रिलेटेड है, जिसका मालिक सियारा सूरज है। सूरज एक माह एक बुर्ज में क्या करता है। सूरज सियारा भी 8वें और 12वें घर में नाकस फल देगा। 8वें घर में ये आएगा 12 फरवरी से 13 मार्च, और इसी तरह बुर्ज जोज़ा में आएगा 14 जून से 14 जुलाई तक। इन 2 माह में आमदन के हवाले से परेशानी आ सकती है, कोई पैसों का आमदन के हवाले से किसी किस्म की परेशानी आ सकती है। मसलन आपके साथ कोई पैसों के मामले में चीट कर सकता है, पैसे कहीं से आते आते रुक सकते हैं, क्योंकि दूसरे घर का ताल्लुक आपकी आमदन से है, आपकी बैंकिंग, आपकी सेविंग, आपकी दौलत। क्योंकि हर कोई यही सवाल करता है ज़िंदगी में, कोई भी ज़ायचा अगर पूछते हैं दौलत का लाजमी पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दौलत है कि नहीं, तो मैं उन्हें हर बात एक ही बात गाइड करता हूँ कि ज़ायचे में दूसरा घर दौलत से मंसूब होता है। आप अपना बर्थ चार्ट देखें, पैदाई ज़ायचे में दूसरे घर का मालिक सियारा की था, अगर तो वो अच्छी पोजीशन में मौजूद था तो ऑल ओवर लाइफ आपको पैसों से, रुपये पैसे से, आमदन के वाले से कभी कभी का सामना नहीं होगा। मगर अगर दूसरे घर का मालिक सियारा नाकिस पोजीशन में मौजूद है तो ऑल ओवर लाइफ ज़िंदगी में जब भी उस सियारे की महादशा चलेगी तब तंगी पैदा करेगा दौलत के वाले से, क्योंकि दूसरे घर का ताल्लुक आपकी गुफ्तगू से भी है, आपकी स्पीच से भी है, और इसी तरह दूसरे घर का ताल्लुक आपकी फैमिली वैल्यू से भी है, आपके हिस्टोरिकल नॉलेज से भी है। बच्चे भी अक्सर स्कूल में, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं याद करते हैं चीज़ें पर भूल जाते हैं। अक्सर माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि बच्चे सबक याद करते हैं मगर पिछला भूल जाते हैं, आगे भी इतना काम है क्या करें। तो दूसरे घर से इसका ताल्लुक होता है, दूसरे घर का ताल्लुक हिस्टोरिकल नॉलेज से होता है, और इंसान जो भी मालूमात अपने पास ज़ख़ीरा करता है या उसे कुछ चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ होता है, उसका ताल्लुक भी दूसरे घर से होता है। तो दूसरे घर का मालिक सियारा सूरज है, तो सूरज सियारा जो है इसमें कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी पाया जाता है, क्योंकि सूरज जो है वो सब सियारगान को अपनी एनर्जी देता है। तो कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं एटीट्यूड पाया जाएगा। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। और इसी तरह ज़ायचे में तीसरा घर और 12वां घर मालिक सियारा अतारद। अब तीसरा घर ज़ायचे में को क्या होता है, तीसरा घर ज़ायचे में आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी मुश्किलें हैं, आपका मीडिया से रिलेटेड, आपके छोटे बहन भाई, अजीज़, दोस्त, रिश्तेदार। इसके अलावा तीसरा घर आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी मीटिंग्स हैं, आपका ऑफिस टीम वर्क है, आपकी एफर्ट, आपकी हिम्मत है। तीसरा घर आपको हिम्मत दिलाता है। तीसरे घर का मालिक सियारा अतारद है और 12वें घर का भी मालिक सियारा अतारद है। तो अतारद जो उनसे सारा साल 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करेगा। अतारद सियारा जब आपके 6ठे और 8वें घर में होगा, जो कि 6ठे घर बुर्ज कोस में ये आएगा 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, और बुर्ज तलु में ये होगा 5 मार्च से 23 मार्च तक। इन अयाम में छोटे बहन भाइयों की तरफ से किसी किस्म की रंजिश पाई जा सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी हिम्मत कम होती हुई नज़र आ सकती है, और तीसरे घर की मनसूबात के हवाले से परेशानी की रुकावट आ सकती है। बाकी ऑल ओवर सियारा तारद 12 बुर्जों में अच्छी गर्दिश में मौजूद रहेगा, जिससे बहन भाइयों के साथ मेल जोल, सलूक, इत्तफाक, मिलन जुलन सब चीज़ें ये होंगी। शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का भी तीसरा घर ज़ायचे से मंसूब होता है। अगर आप कारोबारी वाले से भी कोई शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस करते हैं उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अतारद सियारा वैसे भी तालीमी सरगर्मियों से मंसूब होता है। ज़ायचे में बर्थ चार्ट में अगर आपका तारद सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। तालीमी सरगर्मियों में आपका
کا بہت نام ہوگا. آپ ایک شاعر ہو سکتے ہیں, ایک مصور ہو سکتے ہیں, اور عطارد سیارہ کا تعلق بزنس سے بھی ہوتا ہے. صرف عطارد سیارہ آپ اپنے برتھ چارٹ میں دیکھ لیں, اگر اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو آپ ایک بہت اچھے بزنس مین ہو سکتے ہیں. اسی طرح زائچر میں چوتھا گھر اور 11واں گھر, مالک سیارہ زہرہ. چوتھا گھر کا تعلق آپ کے پراپرٹی سے ہے. چوتھے گھر کا تعلق ہر وہ چیز جو گھریلو سکھ دے, گھر کی چیزیں, ان کا تعلق چوتھے گھر سے ہے. چوتھے گھر کا تعلق آپ کی سواری سے, آپ کی گاڑی سے. چوتھے گھر کا تعلق آپ کی والدہ سے. چوتھے گھر کا تعلق آپ کی چراگاہیں, آپ کا فارم ہاؤس. اس کے علاوہ چوتھے گھر کا تعلق سکھ سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے, جہاں پل کر بڑا ہوتا ہے, اس کا تعلق بھی چوتھے گھر سے ہے. اسی طرح 11واں گھر, اس کا مالک سیارہ بھی زہرہ ہے. 11واں گھر آپ کی وابستہ امیدیں ہیں, ان کا پورا ہونا, وابستہ امیدوں کا پورا ہونا 11ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. 11واں گھر آپ کا بڑا بھائی ہے, آپ کی فیس ویلیو, آپ کتنے فیمس ہو رہے ہیں, آپ لوگوں میں کیسے دکھ رہے ہیں, آپ کی امیدوں کا پورا ہونا, عیش و عشرت, یہ تمام چیزیں 11ویں گھر سے منسوب ہیں. تو سیارہ زہرہ بھی سارا سال 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا. سیارہ زہرہ بھی 8ویں, اس کے بعد چھٹے گھر میں ناقص رزلٹ دے گا, جو کہ یہ آئے گا برج قوس میں. سیارہ زہرہ آئے گا برج قوس میں 5 دسمبر سے سال کے آخر تک برج قوس میں رہے گا, جبکہ برج دلو میں یہ آئے گا 30 مارچ سے 26 اپریل تک. ان ایام میں گھر کی چوتھے گھر اور 11ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے احتیاط برتی جائے. سیل, وہ پراپرٹی کی سیل پرچیز مت کی جائے. گھر بیچ رہے ہیں مت سوچیں ان ایام میں. گاڑی اگر بدلنا چاہتے ہیں ان ایام میں مت سوچیں. ان ایام میں آمدن کم, اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں. وابستہ امیدیں ان ایام میں آپ تھوڑی سی مایوس کن ہو سکتی ہیں. باقی ایام میں باقی سارا سال زہرہ سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. تمام برجوں میں اپنے گھر جب یہ حالت عروج میں آئے گا, برج ثور میں, برج میزان میں, تب بھی بہت اچھے رزلٹ دے گا. اور اس کے علاوہ اس کو برج حوت 9ویں گھر میں حالت شرف ہوتا ہے زہرہ کو, تو یہاں پہ بھی قسمت آپ پر مہربان ہوگی, بہت اچھے رزلٹ دے گا. اور اس سال سیارہ مشتری بھی سارا سال 9ویں گھر موجود رہے گا. اور سیارہ زہرہ جب حالت شرف میں برج میں آئے گا تو جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں اپنا گھر یہاں پہ لے سکتے ہیں. کوئی اگر کرایہ دار ہے تو بھی گھر لے سکتے ہیں. ایسی سیٹلمنٹ یہاں پہ ممکن ہو سکتی ہے. تھوڑی سی ایفرٹ دکھانے پر, تھوڑی سی محنت کرنے پر یہاں پہ ان کا اپنا گھر ہو سکتا ہے. اس کے بعد زائچے میں 5واں گھر اور 10ویں گھر کا مالک سیارہ مریخ ہے. 5واں گھر آپ کی تعلیم ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے. 5واں گھر آپ کی اولاد ہے. 5واں گھر آپ کا شوبز کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے سارا. 5واں گھر زائچے میں آپ کا ان ایکسپیکٹڈ گین, پرائز بانڈ, لاٹری, جوا, جتنا بھی یہ تمام 5ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ 5ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے. اسی طرح 5واں گھر آپ کا جنتر منتر. 5واں گھر آپ کی مہمان نوازی, تفریحات. 5واں گھر انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے. زائچے میں 10واں گھر, وہ بھی سیارہ مریخ کا ہے. 10واں گھر آپ کا بزنس ہے, آپ کا والد ہے, آپ کی سیاست ہے, پالیٹکس ہے, عروج, زوال, عزت و شرف, بلندی, اونچا مقام, مرتبہ, بزرگی کے عہدے میں فائز ہونا, سرکار سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہے وہ سب 10ویں گھر سے دیکھے جاتے ہیں. سرکاری عہدہ بھی 10ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے. ان کا مالک سیارہ مریخ ہے. مریخ جو ہے وہ سال کے آغاز میں جو سا ہے وہ چھٹے گھر میں حالت عروج میں اپنے ہی گھر موجود رہے گا. جی بالکل. اور اس کے بعد یہ چھٹے گھر میں آئے گا 16 جنوری سے, بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا. 7ویں گھر میں جب یہ آئے گا 26 فروری سے 6 اپریل تک حالت شرف میں موجود ہوگا, بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. 5ویں اور 10ویں گھر کے منصوبات کے حوالے سے بہت اچھے رزلٹ دے گا. کاروبار پیک پہ جا سکتا ہے آپ کا. ایجوکیشن میں بڑے اچھے آپ کے مارکس آ سکتے ہیں. تعلیمی سرگرمیاں بہت بزی رہیں گی. اور اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے بھی اچھی خبریں مل سکتی ہیں آپ کو. اور اس کے علاوہ پرائز بانڈ, لاٹری, جوئے کے افراد بھی یہاں پہ انعام پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی کھول سکتے ہیں, کیونکہ مریخ جذبات سے بھرا ہوا سیارہ ہے. مریخ بنا سوچے چیزوں کو کرتا ہے, جذباتی طور پر کرتا ہے. مریخ نہیں سوچتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ وہ کر جائیں گے. مریخ سیارہ جو ہے جب 8ویں گھر میں آئے گا, یہ آئے گا برج دلو میں 7 اپریل سے 15 مئی تک. ان ایام میں کچھ 5ویں گھر اور 10ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے پریشانی آ سکتی ہے. کاروبار میں یہاں پہ لاس ہو سکتا ہے, کوئی آپ سے چیٹ, فراڈ, دھوکہ کر سکتا ہے. تو ان ایام میں جو میں نے ڈیٹ بتائی ہے نہایت احتیاط برتیں. اگر کوئی لین دین کرنا بھی ہے کاروبار کے حوالے سے تو تمام اس کی لیگل فارمیلٹیز پوری کی جائیں. اولاد کے حوالے سے بھی یہاں پہ پریشانی آ سکتی ہے. پرائز بانڈ, لاٹری کے حوالے سے یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے. باقی اعلیٰ تمام سارا سال مریخ سیارہ زائچے میں بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا.
10वें घर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, 11वें घर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मरीख एनर्जी, मार्स, मरीख, मंगल, ये आपकी एनर्जी है, आपकी डिज़ायर है, आपका चीज़ों को अचीव करना, अपना गोल अचीव करना। तो ये बुर्ज सरतान वालों के लिए ये 5वें और 10वें घर का मालिक सारा है। तो मरीख जितना अच्छा, जितना मजबूत होगा, आप 5वें और 10वें घर की मनसूबा जो मैंने आपको बताई हैं उनको अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, आप अपने गोल में, अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद जायचे में 2 बड़े सियारकान उनको डिस्कस करते हैं जो सारा साल किस पोजीशन में रह गए। उनका ताल्लुक छठे घर से है और 9वें घर से है। तो छठे और 9वें घर का मालिक सियारा साल के आगाज में 8वें घर में नाकस पोजीशन में मौजूद होगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ, यानी कि उसके बाद ये 13 अप्रैल से साल के आखिर तक 9वें घर में मौजूद होगा। तो छठा घर आपका क्या है? छठा घर आपकी मुकदमाबाजी, अगर आपका किसी से कोर्ट की चल रही है तो मुकदमेबाजी चल रही है, उसका ताल्लुक छठे घर से है। छठे घर का ताल्लुक आपकी बीमारी से है, आपके कर्जे से है, आपके हादसे से है, आपकी नौकरी से है, आपकी पोल्यूशन, क्राइम, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक छठे घर से। इसी तरह बुर्ज सरतान वालों का 9वें घर जो होता है वो आपकी खाने किस्मत है। बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क आला तालीम, वज़ाइफ का मुकम्मल होना, बुजुर्गी पाना। इसके अलावा 9वां घर जो है आपकी गैर मुल्की खेलों में दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स से भी 9वें घर का ताल्लुक है। ख्वाबों का पूरा होना, तबीर, ख्वाब की पूरी होना, ख्वाबें देखना, नेक ख्वाबें देखना, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना, किस्मत का मेहरबान होना आप पे। यानी कि छठे और 9वें घर की मनसूबात के हवाले से साल के आगाज़ से 11 अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक आपको तंगी रहेगी। इस दौरान आप अगर बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, उसमें आपके साथ कोई एजेंट चीट कर सकता है, आपके पैसे हड़प कर सकता है, धोखा कर सकता है आपके साथ। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये 4 माह आपके लिए बहुत अहम होंगे। क्योंकि मुश्तरी सियारा जब 8वें घर में होगा तो नाकस रिजल्ट देगा बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए। कर्जा लेने का कोशिश करें, जितना हो सके मत लें। मुकदमे में अगर हार होती हुई नज़र आ रही है तो सब्र का दामन इख्तियार करें, क्योंकि ऐसे पोजीशन बनी हुई है, बिला वजह आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिला वजह आप किसी के साथ उलझ सकते हैं, वरना कोई हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि मुश्तरी सियारा 8वें घर में मौजूद होगा। और 13 अप्रैल से साल के आखिर तक मुश्तरी सियारा जब 9वें घर में आ जाएगा तो किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। बेरोजगार अफराद के लिए यहाँ पे नौकरी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के चांस पाए जा सकते हैं। कर्जे का उतरना, सेहत में कामयाबी, किस्मत का आप पर मेहरबान होना, बैरून मुल्क सफ़र करना, ये तमाम रास्ते जो होते हैं ये आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुश्तरी 9वें घर में आ जाएगा। उसके बाद मुश्तरी साल के आखिर तक 9वें घर में रहेगा। उसके बाद 2023 में या 10वें घर में, 2022 में, 11वें घर में, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा आगे मुश्तरी से आने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क आपका स्टडी बेस पे वजीफ़ा भी लग सकता है। तो ये तमाम चीज़ें सब मुमकिन हो सकती हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सियारा ज़ुहल, जो कि आपके 7वें और 8वें घर का मालिक सियारा है। साल के आगाज़ में 2022 में ज़ुहल जो है आपका साल के आगाज़ में बुर्ज जद्दी 8वें घर में मौजूद होगा, 7वें घर में, 7वें घर अपने घर हालत अरूज में मौजूद होगा, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ये 30 अप्रैल से 11 जुलाई तक 8वें घर में मौजूद होगा। 8वें घर में अपना ही घर इसका होगा, मगर हालत अरूज में अपने घर मौजूद होगा। उसके बाद 12 जुलाई से फिर साल के आखिर तक 7वें घर में मौजूद होगा। तो ज़ुहल सियारा जब 30 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपके 8वें घर में आएगा। 8वां घर तो जायचे में अच्छा नहीं माना जाता, बेशक ये अपने घर हालत अरूज में मौजूद है। अब आपने यहाँ पे अपना बर्थ चार्ट देखना है कि कहीं यहाँ पे ज़ुहल की महादशा तो नहीं चल रही, ज़ुहल का दौरे अकबर या सैटर्न का दौरे असगर तो नहीं चल रहा। और पैदाइश के वक्त बर्थ चार्ट में आपकी ज़ुहल किस पोजीशन में मौजूद था? अगर तो आपका ज़ुहल अच्छी पोजीशन में मौजूद था तो मौजूदा यहाँ पे 8वें घर नाकिस होगा तो इतने नेगेटिव असरात मुरतब नहीं करेगा। और अगर बर्थ चार्ट में नाकिस पोजीशन में मौजूद था और मौजूदा 8वें घर में मौजूद है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, हादसे का सबब बन सकता है। क्योंकि ज़ुहल यहाँ पे आपके 7वें और 8वें घर का मालिक सियारा है। 7वां घर आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी है, शादी है। साल के आगाज़ में जब ज़ुहल सियारा 29 अप्रैल तक बुर्ज जद्दी में 7वें घर में मौजूद रहेगा और उसके बाद 12 अप्रैल से साल के आखिर तक भी बुर्ज जद्दी में 7वें घर में मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे शादी के चांस बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन सकते हैं और कामयाब भी हो सकती है। और दोनों लड़का और लड़की अपने बर्थ चार्ट लाजमी देखें कि दोनों के जायचे भी आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। और कमर दर्द करके या में तो बिल्कुल निकाह की रस्मात ना अदा की गई।
वो कमर तक के यहाँ में अक्सर की गई शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। इसी तरह ज़ोहल, मैंने अक्सर और बेहतर चीज़ का जिक्र जरूर किया कि ज़ोहल सियारा जब भी आपके 8वें और 12वें घर में जायचे में मौजूद हो तो उस दौरान भी नकामत किया है। तो ज़ोहल जब भी 8वें 12वें घर में मौजूद होता है तो उस दौरान की हुई शादियाँ नाकाम होती हैं। तो ज़ोहल आपके 7वें घर में मौजूद है, यहाँ पे जो शादीशुदा अफराद है वो यहाँ पे दूसरी शादी का भी योग बना होता है। तो इस हवाले से भी आप ये चीज़ पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसके बाद ज़ोहल जब आपके 8वें घर में आएगा, 8वें घर में ज़ोहल हालत अरूज में मौजूद होगा। ये भी इसका अपना ज़ाती घर है, बुरजद्दी और बुरदलू। 8वां घर आपका क्या है? 8वां घर आपका होता तो नाकस है, हादसे का होता है, आपकी परेशानियों का होता है, एक्सीडेंट का होता है, आपके कामों का ना होना, कामों का इंतवा होना, रुकावटें आना, इन तब ये तमाम चीज़ें 8वें घर से मंसूब हैं। मगर यहाँ पे अपने घर हालत अरूज में मौजूद होगा। ये आपको एक फ़ायदा ये ज़रूर देगा अगर आप गवर्नमेंट के किसी खुफिया डिपार्टमेंट में, क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक सीक्रेट डीलिंग से है, सीक्रेट इदारों से है, क्विक सर्विस इदारों से है, उसमें आपको ये कामयाबी दिलवा सकता है, उसमें आपको ये प्रमोशन दिलवा सकता है। 8वां घर गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं उसमें आपको ये प्रमोशन दिलवा सकता है। 8वें घर का ताल्लुक अदर्स की सेविंग से भी है, अगर आप अदर्स की सेविंग से कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या आपको उसमें भी कामयाबी दिलवा सकता है। 8वें घर का ताल्लुक जायचे में ससुराल की हालत से भी है, उनसे भी कोई सपोर्ट आपको मिल सकती है। 8वें घर का ताल्लुक आपके खुफिया अलूम का भी है। देखिए, अगर आप कोई ऐसे अलूम पढ़ रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया को नहीं मालूम, उनका ताल्लुक भी 8वें घर से है, आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। 8वां घर बेशक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ ना कुछ 8वें घर के फ़ायदे भी हैं। 8वें घर का मालिक अगर मजबूत पड़ा हो तो आप एक बहुत छुपे रुस्तम हो सकते हैं कि आपके अंदर इल्म का ज़ख़ीरा होगा, और ऐसा इल्म होगा कि जो दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर मालूम नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें 8वें घर से मंसूब होती हैं। 8वें घर का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से भी है, यानी कि आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं और आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित भी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक 8वें घर से भी है। बेशक 8वें घर में सियारा माना कोई भी नहीं अच्छा माना जाता, मगर अगर अच्छी पोजीशन में सियारा पड़ा हो तो ये जो आपको मैंने अच्छी चीज़ें इसकी बताई 8वें घर से मंसूब, ये प्लस पॉइंट में रहेगी, ये आपको फ़ायदा दे सकती है। इसके बाद बुर्ज सरतान कैंसर वालों को सियारगान की पोजीशन हमने देखी, मगर आखिरी में मैंने आपको कहा था मैं कि बुर्ज सरतान वालों की बहुत बड़ी बात बताऊंगा। वो ये है कि साल के आगाज़ में तो राहु इनके 11वें घर में मौजूद होगा, मगर राहु जो सा है वो 12 अप्रैल से बुर्ज हमल में आ जाएगा, जो कि इनके 10वें घर में मौजूद होगा, और केतु इनके चौथे घर में है, जो कि 12 अप्रैल से साल के आखिर तक यही मौजूद है। अब राहु 10वें घर में अगर हो तो आप अपना बर्थ चार्ट देख लें, बधाई जायचा देखें। अगर राहु 10वें घर में मौजूद है तो ये आपको दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना सकता है, क्योंकि 10वां घर आपका अरूज है, आपकी इज्जत व शरफ है, आपकी बुलंदी, आपका ऊंचा मुकाम है, आपका बिजनेस स्टेटस बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा। और ये बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि किस्मत का मालिक सियारा भी 12 अप्रैल से 13 अप्रैल से साल के आखिर तक खाने किस्मत में मौजूद रहेगा। किस्मत आप पर बहुत मेहरबान हो सकती है। और राहु 12 अप्रैल से साल के आखिर तक 10वें घर में मौजूद रहेगा। अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में 10वें घर में कहीं मौजूद है, किसी का भी कोई भी जायचा क्यों ना हो, अगर राहु, तो आप एक बहुत अमीर तरीन इंसान हो सकते हैं, आप मिलियनर्स हो सकते हैं। ये राहु की खुसूसियत भी है कि 10वें घर में राहु आपको इतनी बुलंदी में ले जाएगा कि आप खुद भी कभी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जितने मर्जी गरीब क्यों ना हो, राहु 10वें घर में है तो आपको ऐसी बुलंदी देगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। तो ये अब बात बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए 2022 में भी बन रही है कि राहु 12 अप्रैल से बुर्ज हमल में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका कारोबार अरूज पे जा सकता है, आपको बुलंदियों पे लेके जा सकता है, किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की ये बुर्ज सरतान वालों के लिए 2022 के वाले से की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 बुर्ज सरतान वालों के लिए बहुत अच्छा और लकी साल साबित होगी। और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बुर्ज असद लियो को डिस्कस करूँगा 2022 के वाले से। और बाकी अगर आपको अपने बर्थ चार्ट बधाई जायचे का बिल्कुल नहीं पता, आप अपनी तारीख, टाइम और टाइम आपने AM PM लाजमी मैसेज में सेंड करना है। मैं आपको आपका बर्थ चार्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप अपने बर्थ चार्ट में सियारगान की पोजीशन देखेंगे, बर्थ चार्ट के वक्त सियारगान की पोजीशन जायचे में आपकी क्या थी।
اور برج سرطان والے یہ بھی لازمی دیکھیں کہ ان کی کس سیارے کی کس تاریخ کی مہادشا کون سا سیارہ دور اکبر دور اصغر چل رہا ہے، کیونکہ جس سیارے کا دور اکبر دور اصغر مہادشا چل رہی ہوتی ہے اس گھر کی منصوبات کے حوالے سے سیارہ اس گھر کا پھل دیتا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔